Good evening, everyone, and a very warm welcome. First Lady of United States Hillary Clinton once famously quoted that women are the largest untapped reservoir of talent in the world. All over the world, there is an increasing understanding of the need to unleash the untapped potential of women. It has been often said that the 21st century belongs to women. C.A. Sansar, echoing the same sentiments, brings to you Weekend with Wonder Women, a series on women who broke the glass ceilings in their respective fields. Every weekend, we shall meet two Wonder Women sharing their stories of success, achievement, strength, courage, and leadership. Our first guest in the series hardly needs any introduction. She is an alumnus of Shri Ram College of Commerce, a meritorious chartered accountant, also holding a law degree. She has been regularly appearing before the High Court and the ITAT in various tax matters. She was also appointed as an accountant member to the Income Tax Appellate Tribunal in 2015. During her stint at ITAT, she authored more than 400 judgments, many of which were landmark income tax judgments. Another feather in her cap was added when she was offered the position of technical member to the NCLT, a position which she declined to continue her tax practice. An excellent orator, she has been gracing numerous platforms, always willing to share her knowledge with everyone. We have great pleasure in welcoming the legal luminary, Mrs. Rano Jain. Ma'am, a pleasure to have you with us. Hello, everyone. Hello. Nice to see you. I just talked to you and it's a pleasure to meet you. So, ma'am, to begin, what was your inspiration in joining this profession? Uh, Actually, very honestly, everyone has a turning point in one's life. एक तो होता है जरूर. There may be more also. Entering and studying in the Shri Ram College of Commerce was that point. I am from a government school, a simple government school, a girls' school. But somehow I was always very studious. पढ़ाई वढ़ाई कर ली, then I got into Shriram College of Commerce, which was a very big thing, which is a very big thing, you all know. And there I met so many people who were like very ambitious. No, I was not very ambitious at all. I still am not. But I was too fond of studying. I still am. तो पढ़ाई वढ़ाई करते करते ना आई कुड सी पीपल सेइंग आई बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई बिकम एन एमबीए. तो आई यूज्ड टू थिंक यार क्या बड़ी बड़ी बातें करते हैं ये लोग. But that was the turning point. 3 years in the Shri Ram College of Commerce. I won't say a particular person to be my inspiration at that time, but that was the push. Shri Ram College of Commerce gave me the push. I got third rank in the Delhi University, and when people were saying कि CA बनूंगा और MBA बनूंगा, तो I thought क्यों ना मैं भी कुछ बन जाऊं. And my parents supported me a lot because Neha, you have to remember, those were the days when girls, very few girls opted for CA course, and very honestly, commerce बहुत कम लड़कियां लेती थी. So those were the days. अच्छा मतलब when I exploded this bomb in my household कि I want to become a CA, that was like, oh, CA होती है क्या? CA होती है क्या? नहीं नहीं, लड़कियां नहीं करती हैं. लड़कियां करके क्या करेंगी? Full time job and all. Very honestly, teaching was my first love. Still, it is my first love. I wanted to become a teacher always throughout my life. बहुत छोटी थी तब से I wanted to become a teacher. I don't know what happened in that period of 3 years in Shri Ram College of Commerce. I just wanted to become a CA and I became that. You can call that an inspiration also. So we are fortunate to Shri Ram College of Commerce then that we have with you. I, We have you with us today, else you would have been teaching in some school. yes, school or probably college. Maybe in I Shri am Ram also College of alumnus Commerce. of the same college.
Oh, nice, nice. Very nice. Because we So, are proud, we feel proud, very proud to be from SRCC. You know that. We can share definitely, that yes. feeling. Huh? So, in your long career, what has been your most memorable accomplishment till date? Most memorable is being an IT member, definitely. And when you are talking about this long career, let me tell you certain things. It is not as long as it looks. Um, I'm going to tell you a secret. I got married at the age of 25 after completing my CA, 1 year after completing my CA. And actually, I'm from a Jain family and married in a Jain family. That was a very conservative family. And very honestly, I was not allowed to work after my marriage. And hold your breath, for 14 years after my marriage, I didn't work at all. I did not work at all. I was at home. I was with my children doing household chores and all. And 14 years was like, kuch bhi nahi kiya. Then destiny has its plans. So I started working. Mr. Vijay Jain, you all know him, past president of the Institute of Chartered Accountants. He is my mentor. He gave me the second innings, second break. I went to him and then I started working again. So it was a period of 14 years when I didn't work, and it has now become 14 years when I started again working. So it's not that long a career. And definitely becoming an ITAT member was the thing, was the point, was the period, or what the something which I had not actually, I had never dreamt of it, because you can understand after not working for a period of 14 years, it's a very long period. The very first day when I went to ITAT, Mr. Vechan asked me to come to go with him. So I was looking at the members sitting in the bench, and ये कितने बड़े लोग हैं, that was the feeling I was having that day. यार ये कितने बड़े लोग हैं ना, they are such intelligent people, and यार क्या है, कितनी बड़ी चीज है. And then when I started going there regularly, and it's very obvious, you can understand, everyone can understand, when you go to a place regularly, तो एक माइंड में कुछ हो जाता है कि even I want to sit there, even I want to sit there. Still, very honestly, that was also not my ambition. I was enjoying whatever I was doing. होता है ना, बड़ी मुश्किल से कोई चीज मिलती है तो यू स्टार्ट चेरिशिंग दैट, एंड उसमें एफर्ट्स भी ज्यादा लग जाते हैं, मेहनत भी ज्यादा हो जाती है. तो आई वाज thoroughly enjoying whatever I was doing. And just as a natural progression, I went for the interview and I got selected. अब सिलेक्ट होने के बाद तो बात ही अलग होती है ना. तो आई थिंक इतने लंबे करियर में शायद आईटीआईटी मेंबर बनना वाज द फर्स्ट बिगेस्ट थिंग. एंड देन जब मैं आईटीआईटी छोड़कर वापस आ गई, स्टार्टेड माय ओन प्रैक्टिस. तो मेरी बेटी, शी इज अ डॉक्टर. एक दिन ऐसे ही उसने कहीं कोई एडवर्ट पढ़ा एंड शी वाज लाइक कि ये एनसीएलटी में कुछ वो निकले हैं वैकेंसीज, व्हाई डोंट यू गो फॉर इट. मैं कहा नहीं नहीं, आईटीआईटी मेंबर बन गया, एनसीएलटी नहीं बनना. बट शी वाज लाइक कि नहीं नहीं, जाओ जाओ, भर दो. आई डोंट नो, बस उसके कहने से मैंने आई जस्ट अप्लाइड. एंड जब वो इंटरव्यू की कॉल आई तो मेरा मन नहीं था जाने का, एंड शी जस्ट फोर्स मी कि चले जाओ. आई जस्ट वेंट देयर. बहुत छोटा सा मेरा इंटरव्यू हुआ, दो चार चीजें उन्होंने पूछी. आई जस्ट केम बैक. एंड सिंस आई वाज नॉट वेरी एंशियस, वेरी कीन टू गो टू एनसीएलटी, आई जस्ट फॉरगॉट. मुझे बिल्कुल याद नहीं था कि मैंने इंटरव्यू दिया है. एंड नेहा, यू वोंट बिलीव, जिस दिन वो इंटरव्यू आया एंड आई सॉ माय नेम देयर, आई थिंक दैट वाज द सेकंड बेस्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ. अरे यार, ये भी हो गया क्या? So life is full of surprises. Everyone's life is full of surprises. So mine has also been equally surprising, and it is still giving surprises. अब ये pandemic भी तो हम सब के लिए एक surprise ही रहा, है ना? So it's like this. True, very true. So, how does it feel to practice and very successfully in a field which is mostly dominated by men?
That's a very good question, because I had to gather such amount of courage to start my own practice, just because I am a lady. You know, uh, when I decided to start my own practice, you wouldn't believe, मेरी मम्मी ने मेरे से 15 दिन तक बात नहीं करी. She was too like upset with me. ये प्रैक्टिस करती हैं क्या लेडीज, चलती है क्या, काम होगा क्या, एंड ये कोई उम्र है प्रैक्टिस करने के. आई स्टार्टेड एट द एज ऑफ 50, अराउंड 51, व्हेन आई वाज 51. तो आई थिंक शी वाज राइट आल्सो. मुझे भी कई बार लगता था यार ये बात तो सही कह रही है, इस एज में आप प्रैक्टिस शुरू करते हो. एंड डेफिनेटली मेल डोमिनेटेड सोसाइटी एंड प्रैक्टिस आल्सो. तो पता नहीं, यू नो, कभी कभी ऐसा होता है ना, व्हेन डेस्टिनी इज विद यू, तो कुछ चीजें आपको फोर्स करती हैं. यू नो, जैसे मम्मी अपसेट हुई, और भी कुछ लोग हुए, एक आधा फ्रेंड थे जो वो नॉट इन फेवर, एंड देयर वर फ्रेंड्स हु वर सो मच इन फेवर, हु वर लाइक पुशिंग मी कि रानो तो क्यों नहीं कर सकती, यू कैन डू इट, जस्ट गो फॉर इट. तो यू नो, दोनों तरह का प्रेशर था. तो एट टाइम्स दीज काइंड ऑफ प्रेशर्स ना, they become motivation, they become challenge actually, not motivation. तो जैसे ऐसी फील आई अब तो करके ही दिखाना, एंड आई जस्ट स्टार्टेड. और मम्मी को मैंने कैसे मनाया, यू नो, मदर्स आर लाइक दैट ना. तो उनको तो बस एक डायलॉग मारना था. पता नहीं क्या हुआ, मुझे एक दिन ऐसे वो नाराज बैठी थी मेरे से, तो मैंने उनसे कहा, मम्मी आपको क्या लगता है, क्या मैं ये छोटे छोटे काम करने के लिए थोड़े हूँ, आई एम मेंट फॉर बिगर थिंग्स. वो बोली क्या मतलब, व्हाट डू यू मीन. मैंने कहा मेरे लिए भगवान ने कुछ सोचा हुआ है ना, मदर्स को तो इमोशनली ब्लैकमेल करना पड़ता है ना. मेरे लिए भगवान ने शायद ये सोचा हुआ है कि मेरे को बहुत बड़े बड़े काम करने हैं, तो लेट मी बी इंडिपेंडेंट. तो पता नहीं वो शायद उन्हें स्ट्राइक कर गया. एकदम से उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा, एंड शी वाज लाइक, चल कर बेटा, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है. एंड यू नो, पेरेंट्स का आशीर्वाद है तो फिर कोई नहीं रोक सकता. बाकी तो अपनी मेहनत होती है बेटा. तो कर रहे हैं, लगे हुए. तो संघर्ष खत्म नहीं होते, संघर्ष अभी भी हैं. ऐसा नहीं कहूंगी कि शुरू कर दिया और मिल गया सब कुछ. और लेडी होने के डेफिनेटली कुछ एडिड संघर्ष हैं, डेफिनेटली है. ठीक कर रहे हैं. So, what do you think were the major sacrifices that you had to make in order to achieve the level of success that you have been able to achieve now? Actually, not. I won't say I had to sacrifice so many things, because one of the reasons was कि I started very late. मेरे बच्चे बड़े हो गए थे, मतलब बहुत बड़े तो नहीं थे. My son was 5 when I started working, and my daughter was 11. But still, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं. तो as such नहीं कहूँगी कभी मैंने बहुत भारी sacrifices करे हैं, करने पड़े हैं. And one more thing, once you love your work ना, ऐसी मेरी पर्सनल फीलिंग है, जब आपको आपका काम बहुत अच्छा लगता है ना, तो वो जो सेक्रीफाइसेस होते हैं ना, वो सेक्रीफाइसेस नहीं लगते. दैट इज जस्ट अ मैटर ऑफ यू नो एडजस्टमेंट, कि हाँ आज बच्चा बीमार है तो मुझे छुट्टी करनी पड़ेगी, मुझे छुट्टी करनी पड़ेगी, या मुझे बहुत जरूरी है तो मुझे मेड को बच्चे के पास बैठाकर जाना पड़ेगा. यू नो, यू कैन कॉल इट सेक्रीफाइस कि भैया आप काम पर नहीं गए, आप बच्चे के पास बैठ गए. आई वुड कॉल इट जस्ट एन एडजस्टमेंट. इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर परसेप्शन कि आप उसको कैसे लेते हो. एंड यू नो, ये सेक्रीफाइस वाला जो वर्ड है ना, आई नेवर लाइक इट. मुझे पर्सनली नहीं पसंद है. अरे कौन कह रहा है सेक्रीफाइस करने को, मतलब व्हाट सेक्रीफाइस, इसकी जरूरत क्या है, उसके बिना जियो ना. और जो कर रहे हो अपने लिए कर रहे हो, व्हाई टू उसको हमेशा ऐसे महिमा मंडित करना है कि भाई मैंने तो सेक्रीफाइसेस किए हैं. ऑनेस्टली मैंने बहुत ज्यादा सेक्रीफाइसेस नहीं किए, लेकिन जिसको कन्वेंशनली सेक्रीफाइस कहा जा सकता है, कहा जाता है, तो अब जैसे आई बिकेम ITIT मेंबर, आई वाज पोस्टेड इन चंडीगढ़. I used to go every Monday by flight to Chandigarh and came back every Friday evening. शताब्दी से मैं वापस आती थी. तो I missed my children.
definitely I missed my children. So you will call that sacrifice if you like to call that. बस इस तरह की छोटी छोटी चीजें हैं. एट टाइम्स सर्वेंट नहीं है घर पर, छुट्टी पर गया है, मेड नहीं है, तो जब शाम को वापस आ रहे हैं तो भैया अब खाना भी बनाना पड़ेगा बच्चों के लिए. यू नो, जब बच्चे बड़े हो गए तो उन्होंने रियलाइज करा अरे नहीं बनाना, नहीं यार बाजार से मंगवा लेंगे. यू नो, आपको अपना माइंड, इफ यू लव योर वर्क एंड इफ यू रियली वांट टू वर्क, मन से करना चाहते हो, किसी पर एहसान नहीं, किसी वजह से नहीं, जस्ट बिकॉज मुझे अच्छा लगता है काम मैं करना चाहती हूँ, तो सेक्रीफाइस, आई डोंट नो, लिस्ट बनाऊंगी तो बहुत लंबी बन जाएगी, लेकिन आई डोंट कॉल देम सेक्रीफाइस. मेरे हिसाब से दोज आर नॉट सेक्रीफाइस, दोज आर जस्ट एडजस्टमेंट्स. कभी बच्चों की हेल्प ले ली, कभी हस्बैंड की ले ली, कभी इन लॉज की ले ली, कभी पड़ोसियों की ले ली, कभी मेड्स की ले ली, बस बस नथिंग मोर देन दैट. नॉट एनी very big sacrifice. You have provided a very different dimension to the word sacrifice now. I'm sure people will look it in a very different light now. That is my own perspective ना. I told you कि मैं, उससे easy होता है नया, it becomes really easy. अगर हर टाइम यही देखते रहोगे कि हाँ मेरे को ये sacrifice करना पड़ रहा है, ये sacrifice करना पड़ रहा है, तो life becomes difficult. And you know, a lady's life, आप कुछ भी कहो. अभी मैं विवेक जी से बात कर रही थी तो आई वाज टेलिंग हिम, वो ही वाज टेलिंग अबाउट दिस प्रोग्राम यू हैव कॉन्सेप्चुअलाइज्ड. तो आई वाज टेलिंग हिम कि देखो हम चाहे कितनी भी तरक्की कर रहे हैं, women are going places, girls are going places, girls are too ambitious. हम लोग तो इतने ambitious नहीं थे, हम तो बाई चांस पहुंच गए, कर लिया हमने. तो still जो यंग गर्ल्स हैं, शायद तुम लोग नहीं मानोगे, मेरी अपनी बेटी नहीं मानेगी मेरी इस बात को, देयर आर स्टिल छोटी छोटी स्ट्रगल्स जो हमें फाइट करते हैं. एंड इफ these people, these male in our society or in our profession, if they help us or if they also cooperate with us, तो that would be easier, और शायद उनके भी रास्ते निकले. बट अभी थोड़ी रास्ते और निकालने की जरूरत है. तो आई ऑलवेज मेंटेन, मैं अपने फैमिली की जितनी भी गर्ल्स हैं उनको कहती हूँ कि तुम्हारी बहुत सारी लड़ाइयाँ हमने लड़ दी हैं, तुम्हारे लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया है. यू विल एग्री विद मी, यू आर लाइक माई ऑलमोस्ट माई डॉटर्स एज. तो हमारे टाइम में तो जनरेशन आई बिलोंग टू, प्लस सीए करने के बाद भी आई वाज अ रैंक होल्डर थ्रू आउट माई लाइफ. और मैं सीए करने के बाद मेरी 1 साल बाद शादी हुई है. स्टिल इट वाज अ क्वेश्चन कि काम करेगी या नहीं करेगी. आज की डेट में that is not a question. You want to work, you have to work, you will work. Nobody will ask you कि काम करेगी या नहीं करेगी. तो वो वाली जो फाइट्स है ना, वो हम लड़ चुके हैं तुम्हारे लिए. इट्स गुड फॉर यू. अब तुम अपनी लड़ाइयाँ लड़ना, ठीक है ना? Yes. So, on a different topic, what do you think are the 3 most important attributes which distinguish the ordinary from the extraordinary in the legal field, especially? Specifically in the legal profession, it generally applies to everyone, whatever field one is working in. देखो, firstly, one has to love one's work. That makes a lot of difference. काम सबको करना पड़ता है बड़े होने के बाद. किसी को घर चलाने के लिए करना पड़ता है, किसी की और कंपल्शंस होती हैं. काम सबको करना पड़ता है. कोई घर में काम करता है, कोई घर के बाहर काम करता है. नो, इवन दीज होम मेकर्स, हाउसवाइफ्स जिनको बोलते हैं, दे वर्क मोर देन अस. दे वर्क रियली मोर देन अस, बिकॉज हमने तो बीइंग वर्किंग, हमने बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर अपना तैयार कर रखा होता है. यहाँ सर्वेंट है, यहाँ मेड है, यहाँ ये है, ड्राइवर है, ये है, वो है. दे हैव टू डू एवरीथिंग देमसेल्व्स. तो काम सबको करना पड़ता है. बट लव योर वर्क. इफ यू लव योर वर्क ना, तो मैं शायद पहले भी किसी क्वेश्चन के जवाब में तुमसे ये वाली बात बोल चुकी हूँ. थिंग्स बिकम वेरी इजी. थिंग्स बिकम सो इजी कि कुछ फर्क नहीं पड़ता. एंड यू नेवर रियलाइज कि आप कहाँ एक्सेल करते जा रहे हो, जस्ट बिकॉज यू लव योर वर्क. क्योंकि वंस यू लव योर वर्क, तो फिर सब कुछ अच्छा ही होता है. नो, यू गेट टू लर्न मोर,
you automatically you start growing. तो first you love your work. इसी की एक corollary मैं बताऊंगी. If you love your work, then you excel. Try to do that work which you love. You know, मैं एक किसी सेमिनार में मुझे बुलाया था, लेडी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बैठी थी एंड क्वाइट अ फ्यू यंग गर्ल्स. तो आई स्टार्टेड विद कि मैं देखो किसी जबरदस्ती में काम नहीं करना. सीए तो कर ली क्योंकि आजकल तो 12वीं के बाद सीए हो जाती है, तो 12वीं के बच्चे को तो पता ही नहीं होता कि उसका इंक्लिनेशन कहाँ है. कोई सीए करते हैं, सीए में अच्छी कमाई होती है, सीए इज अ गुड प्रोफेशन, बच्चे कर लेते हैं. देन दे रियलाइज कि इट इज नॉट मेंट फॉर मी, ये काम तो मुझे अच्छा लगता नहीं है. तो स्टिल डिग्री एक अलग बात है. डू व्हाटएवर यू फील गुड एट, इसको करने में मजा आता है. फिर आपको टाइम का भी नहीं पता चलता आप कितना टाइम लगा रहे हो. फिर आपको सेक्रीफाइसेस का भी नहीं पता चलता कि कितने सेक्रीफाइसेस कर रहे हो. दैट इज वन थिंग. एंड यू आस्क मी फॉर 3 ना. सेकंड इज सिंसियरिटी. एंड सिंसियरिटी नॉट इन कन्वेंशनल सेंस कि आपको 10 बजे ऑफिस में होना है तो 10 बजे होना ही है, 6 बजे निकलना है तो 6 बजे निकलना ही है. जस्ट बी सिंसियर टू योर वर्क. कोई नो एक्सक्यूज. अगर कल का के नो, और हमारे लीगल प्रोफेशन में तो समाउ ये ऑटोमेटिकली आ जाता है. कल का केस है तो भैया आज तैयार करना ही पड़ेगा, कैसे भी करना पड़ेगा, चाहे सारी रात जागना पड़े, कल कोर्ट में खड़ा होना है ना. तो सिंसियरिटी इज वन. एंड थर्डली आई वुड से एक सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम. जो मैं हमेशा लड़कियों को बहुत इस बात के लिए एडवाइस देती हूँ, डोंट ट्राई टू बी अ सुपर वुमन. आई एम अ सुपर वुमन, मैं सब कुछ कर लूंगी. नहीं यार, नहीं होता. इट्स नॉट दैट इजी. ये सब किताबों में अच्छा लगता है और बोलने में अच्छा लगता है. बोलने को मैं भी यहाँ बोल जाऊंगी कि मैंने इतना कुछ किया, ये किया, वो किया. नहीं, जब से काम शुरू किया मैंने कभी खाना नहीं बनाया घर में क्योंकि इतना टाइम नहीं होता, नहीं हो सकता. मतलब आज भी आई नो वेरी पर्सनली, मैं तुम्हें बता रही हूँ कि जब जैसे किसी दिन मुझे खाना बनाना पड़ता है और मेरा बेटा पहचान जाता है कि मम्मी के हाथ का आलू है, ये मेड के हाथ का नहीं है. मैं कम बनाती हूँ. पेंडेमिक में तो फिर भी बनाना पड़ रहा है काफी. तो मैं आई वॉज टू कूल अबाउट दिस फ्रॉम द वेरी बिगनिंग. जिसकी भी जब भी जहाँ जैसी हेल्प मिली मैंने ली. एंड आई वाज नेवर अशेम्ड ऑफ दैट. इन लॉज की लो, नेबर्स की ले लो, मेट्स की ले लो, हस्बैंड की ले लो, जिसकी मिले ले लो. एंड ठीक है, चलने दो, काम सही होने चाहिए बस. ये वाली इनहिबिशंस नहीं रखनी चाहिए, इस तरह के मन में भाव नहीं रखने चाहिए कि नहीं मैं माँ हूँ मुझे ही करना है. नहीं यार, बच्चों को भी ग्रो करने दो. सब बढ़िया करते हैं अपने आप. एंड एवरीवन वांट्स टू बी इंडिपेंडेंट. हावी हो रहते हो तो बात नहीं बनती. जस्ट हैव अ गुड सपोर्ट सिस्टम. ट्राई टू बिल्ड अ गुड सपोर्ट सिस्टम. आई थिंक आई एम डन विद 3 ना. Yes. So you've represented so many cases for so many courts. So is there some particular case that you recall is your favorite one in the court? नहीं, every case is a favorite case because you know I love arguing, and that was my love for arguing actually forced me to leave ITAT because at that place I was just hearing cases, not saying something. And I am very fond of speaking actually. फेवरेट तो बहुत सारे होते हैं, बट आई स्टिल रिमेम्बर जो मेरे बहुत शुरू के केसेस थे ना, व्हेन आई वाज टू यंग एंड टू जूनियर. I was not very young actually. I started working at the age of 39, so I was not that young, but I was junior, very junior. So Jain Saab had gone somewhere, so he asked me कि रानो ये केस तुम करा लेना. मेरा तो जैसे सुन के मन सा ऐसा हो गया यार, मैंने कभी किया नहीं. I was just assisting him till that time. तो स्टिल जैन साहब ने कुछ मुझे समझाया कि ऐसे ऐसे बोल देना, और इट्स अ स्मॉल केस, डिपार्टमेंट की अपील है, तुम्हें बस इतना बोलना है, हो जाएगा. मैंने कहा चलो ठीक है. बड़ी हिम्मत करके हम गए एंड
इससे पहले डिपार्टमेंट कुछ बोलता, इट वाज IT18। तो मैं मेंबर्स वगैरह का नाम नहीं बताऊंगी। मैंने जो मुझे पढ़ाया गया था मैंने उतना बोल दिया। तो द मेंबर आस्क्ड मी, दे ऑल न्यू मी कि ये जैन साहब के साथ आती हैं एंड जूनियर हैं, जैन साहब की असिस्टेंट एंड आई। तो ही वाज लाइक कि can you argue this matter, can you raise this question here at this forum, being a respondent, because I was a respondent, and it was departmental appeal. Yes, of course I can. How can you? That's a legal issue. I can. Do you have some authorities? I don't have, because मैं उस लाइन पर तैयार होकर नहीं गई थी। तो he says, okay, हम कल के लिए एडजन करते हैं, you come tomorrow. मैंने कहा ठीक है। मैंने जल्दी जल्दी अपनी फाइल वाइल उठाई एंड जैसे मैं जाने लगी कोर्ट से निकल के, I was about near the door. He says, please don't bring your senior tomorrow. और मेरी तो जैसे इतना वहीं जान निकल गई। मैंने कहा मैं तो खुश हो रही थी, कल तो सीनियर आ जाएंगे, he will take care of it. चलो खैर, these are the challenges. जैसे तुम सेक्रीफाइसेस की बात कर रही थी ना, सेक्रीफाइस तो सिर्फ हम बना देते हैं, चैलेंजेस हर रोज आते हैं, एवरी डे। अब दैट वाज अ वेरी बिग चैलेंज फॉर मी कि अब मैं इस लाइन पर इसको तैयार करके जाऊं, एंड आई एक्सेप्टेड द चैलेंज। मैंने बहुत मेहनत करी, मतलब घर आके रात तक कुछ केसेस निकाले, ये वो। एंड आई टोल्ड जैन साहब कि ऐसे ऐसे हुआ। तो जैन साहब स्टार्टेड लाफिंग, ठीक है यू गो। अब तो मैं तो जा नहीं सकता, उन्होंने बोल दिया है। देन आई वेंट नेक्स्ट डे, मैंने उसको एट लेंथ आर्ग्यू किया, उनको कुछ केसेस बताए, एंड द मेंबर वाज क्वाइट हैप्पी। इनफैक्ट उन्होंने अपने कुछ केसेस उसमें ऐड किए, देखो बॉम्बे हाई कोर्ट ये कहता है, बॉम्बे हाई कोर्ट ये कहता है। एंड आई वाज रियली हैप्पी व्हेन वो हर्ड हो गया, हम आ गए बाहर। तो मेरे साथ मेरे एक एसोसिएट जाते थे, वेंकटेश। तो हम सुनाकर आ गए। उसके बाद प्रोनाउंसमेंट होती थी फ्राइडेज को, जो केसेस हर्ड हो जाते थे उनकी प्रोनाउंसमेंट आजकल नहीं होती। तो उस प्रोनाउंसमेंट सुनने गए थे, हमारे 2-3 केसेस की प्रोनाउंसमेंट थी। तो आई वाज इन द अदर बेंच, और वो वेंकटेश दूसरे बेंच में बैठा हुआ था जिसमें मेरे वाला केस प्रोनाउंस हुआ था। एंड द मेंबर आस्क्ड, वेयर इज दैट लेडी? तो he says कि she is in the other bench. तो okay, tell her she has won the case. तो I still cherish those moments कि हाँ मैंने कुछ ऐसा किया, जबकि it was a very small case। तो खूब बड़े बड़े केसेस भी किए, आज की डेट में तो खूब बड़े बड़े भी करते हैं, बट यू नो कुछ चीजें बड़ी याद रहती हैं। तो that is one of those. I don't know in what sense you were asking the favorite case, or but this is my pet favorite case, और ये मैं अपने जूनियर्स को, अपने बच्चों को बताती रहती हूँ कई बार। मैं भूलती नहीं हूँ उसको, इसके साथ क्या हुआ था। So this qualifies to be the favorite one then. So you already answered in brief. I was about to ask you that your stint at IT80 was very short. So what was the reason? What changed your mind? That was 1 year. Actually, very honestly, when I got selected, at the very first day when I got to know that my name is there, when I was selected as a member, the feel was कि ठीक है, I'm happy that I've done something good, but I was not very keen to join that service because I knew I had to go out of Delhi and all. But somehow, when things get materialized, so life becomes a little different. Life starts behaving differently. My husband was very keen. He's a chartered accountant, so he was like, नहीं नहीं यार, लोगों का होता नहीं, तुम्हारा हो गया, and you are saying कि वो हमको। Mr. Wade Jain was very keen. अरे कमाल कर दिया, सिलेक्शन हो गया, जॉब भी नहीं गया। तो I just made up my mind कि चली जाऊंगी। I went there, and very honestly, that 1 year is my favorite part of my life, actually. And even today, I maintain that in this whole world, that is the one thing which came too at ease to me and I was too comfortable doing,
and I was thoroughly enjoying. I really enjoyed that stint, but somehow, एक फील थी हमेशा से, प्रैक्टिस करनी है, एंड एक वो जो होता है ना, बोलने का इतना शौक है, वहां बोलने को नहीं मिलता था, वहां सिर्फ सुनने को मिलता था। तो आई जस्ट, ये हो गया यार, एक साल में बहुत कुछ लिख लिया, बहुत कुछ सुन लिया, देख लिया, समझ लिया, नाउ आई हैव टू गो। दैट वाज द ओनली रीजन, नॉट कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। आई जस्ट केम। So whenever you appear in court, do you have any calm mantra that you have in your mind whenever there's some anxiety in the court? नहीं, शुरू में बहुत होता था, उस टाइम बड़ी एंजाइटी होती थी। तो not actually any mantra. The mantra is कि case should be fully ready. I make it a point, even if the case is 99.99% ready, I prefer to take adjournment unless it is 100% ready. That is the main mantra. And otherwise तो nothing. शुरू में बहुत होता था कि नंबर आने वाला है तो नमोकार मंत्र बोल रहे हैं मन में कि भगवान सब सही हो जाए। अब ऐसा नहीं है, दो भगवान तो हमेशा साथ में रहते हैं, उनको याद करते रहते हैं हम, नॉट, बस मंत्र यही है कि केस शुड बी रेडी, आई शुड बी लाइक, मैं बोल दूंगी, आई नो, अब मुझे हर सवाल का जवाब पता है इसमें। दैट इज द मंत्र, दैट इज द ओनली मंत्र। So any words of wisdom for the newcomers joining the profession, and especially females? Especially females, yes, exactly. First thing which I already told you, मन है तो काम करो, मन नहीं है तो मत। There should be no compulsion to do anything which you don't like. Give it a chance, give it a shot. अच्छा लगता है कर लो, छोड़ दो, नहीं अच्छा लगता तो मतलब डोंट फोर्स योरसेल्फ। ये तो मैं बहुत ज्यादा सारी लड़कियों को कहना चाहूंगी, बिकॉज आज की डेट में आई हैव सीन मे बी पीयर प्रेशर, मे बी सोसाइटल प्रेशर, व्हाटएवर। पढ़ना तो सबको होता है, पढ़ लेते हैं, लड़कियां बहुत होशियार हैं, ज्यादा पढ़ लेती हैं, लेकिन एट टाइम्स आई हैव सीन कि बस एक जैसे ना रैट रेस में भागना है। वो बिग फोर में काम कर रही है मेरी फ्रेंड, वो बिग फोर में काम कर रहा है, तो मैं तो उससे भी ज्यादा कुछ कर लूँ। एंड यू नो, वो एक जो मारामारी होती है ना, यू कैन आइडेंटिफाई विद दैट। ऑडिट में जाऊं, टैक्स में जाऊं, यहाँ जाऊं, वहां जाऊं, जस्ट बी कूल, ले लो जो जिसमें लगता है कि शायद मुझे अच्छा लगेगा, टैक्स अच्छा लगता है या ऑडिट अच्छा लगता है। और उसको नहीं अच्छा लगे तो छोड़ दो यार, 6 महीने में, साल भर में छोड़ दो। लाइफ बहुत लंबी है, कुछ फर्क नहीं पड़ता अगर एक साल खराब भी हो जाएगा। स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। एक ऐसी चीज को जो तुम्हें पसंद नहीं है, उसको सारी जिंदगी झेलते रहो, उससे अच्छा है ना कि एक साल खराब कर दो, कोई बात नहीं, फिर से शुरू होती है चीजें। जब मैं 14 साल बाद शुरू कर सकती हूँ, तुम एक साल बाद नहीं शुरू कर सकते क्या? ये एक बहुत बड़ी चीज है जो आई हैव टू एडमिट कि विच इज नॉट दैट इजी। इतनी आसान नहीं है जितना मैं बोल रही हूँ, बट स्टिल मैं बोल रही हूँ, मैं बहुत बड़ी हूँ, तो एज में तुम लोग बहुत यंग हो, तो प्लीज इसके बारे में सोचो, ज्यादा रैट रेस में नहीं। जैसे मैं भी आज की डेट में मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, मुझे कोई बुलाता है, मैं सेमिनार भी देने चली जाती हूँ, वेबिनार भी देने चली जाती हूँ, लिखने का शौक है, मैं आर्टिकल भी लिख देती हूँ, बट आई एम नॉट इन द रैट रेस, है ना। काम जितना आया कर लिया, किसी ने बुलाया तो चले गए, मन किया तो दिया, नहीं मन किया तो नहीं लिखा। तो वो जो मन को अच्छा लगे, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो काम करना या प्रोफेशन या वोकेशन जो भी जिसका होता है, दैट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ। लाइफ बहुत बड़ी है, लाइफ में बहुत सारी और चीजें भी हैं, नो, फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं, और बहुत सारी चीजें तुम्हें एक्सप्लोर भी करनी है अभी लाइफ। तो ऐसा ना हो कि सारी एनर्जी, सारा फ्यूल, सारा टाइम सिर्फ इस प्रोफेशन को बनाने में, इसमें ही लग जाए।
This is just a part of life, just a small part. It may be a big part, but it is just a part. Life के बहुत सारे और हिस्से हैं, तो don't waste your fuel on that. Don't waste your energy on that. वहां रुको जहां लगे कि ये वो काम है जिसमें मुझे मजा आ रहा है, ठीक है ना. एंड तो हमारे टाइम में दूसरी बात थी, अब तो इतनी वो कंपल्शंस भी नहीं रह गई कि पढ़ लियो, पढ़ते ही शादी करनी है. लड़कियां मजे से जी रही हैं, तो टेक योर टाइम, फाइंड आउट करो कि क्या अच्छा लग रहा है, वहीं रुक जाओ बस. नहीं तो करते रहो, कोई बात नहीं, क्या हुआ, लाइफ में इतने सारे एक्सपीरियंसेस मिलेंगे, है ना. तो दैट इज वन थिंग जो मैं बहुत मन से बोल रही हूँ. मेरा बहुत मन होता है कि मैं यंग लड़कियों को, यंग गर्ल्स को ये वाली बात कहूँ कि रैट रेस है, कंपटीशन अपने आप को बनाओ, किसी और को, ठीक है ना. Would you like to share something more about your family, your interest aside from the legal aspect that you're working in, your देखो, hobbies? फैमिली है, यू नो, एट माय एज बच्चे बड़े हैं मेरे, तो उनके बारे में तो ज्यादा कुछ शेयर नहीं करूंगी. मेरी हॉबीज के बारे में करना चाहूंगी शेयर. देयर वर डेज जब मैं स्कूल कॉलेज में थी, तो आई यूज्ड टू ड्रॉ, नॉट पेंट, आई यूज्ड टू ड्रॉ. मैं ड्राइंग करती हूँ. एंड मेरी स्पेशलिटी ये थी कि आप मुझे कोई पिक्चर देते हैं तो मैं उसको हूबहू कॉपी कर देती हूँ, बड़ा छोटा जैसे भी हो गया. तो डाउन द लाइन फिर ऐसा हुआ कि जब बच्चे छोटे थे, इनके प्रोजेक्ट बनाती थी, फिर बस वो छूट गया. एंड यू नो, एज आई टोल्ड यू, मेरी लाइफ रही भी ऐसी है कि जब मुझे प्रोफेशन हाथ में आया, तो वो इतना प्रीशियस था कि उसके आगे कुछ अच्छा ही नहीं लगता, मतलब मन ही नहीं करता था कुछ और करने का, कि इसको पकड़ के रखना ही बड़ी मुश्किल से मिला. सो वो थोड़ा पीछे रह गया था. अभी पिछले कोई 1.5-2 साल से बच्चों ने बहुत कोर्स किया, और मुझे मेरे किसी डॉक्टर ने भी बहुत सलाह दी कि आप इसको स्टार्ट करो. तो मैंने थोड़ा सा वो करना शुरू किया है. पेंडेमिक में उसने मेरी हेल्प की थोड़ी सी, क्योंकि यू कैन अंडरस्टैंड, एक इंसान जब इतना काम करता है, उसकी बैठना बिकम्स रियली डिफिकल्ट. तो मैं पेंटिंग कर लेती हूँ. बाकी मेरे बच्चे दे आर फूडीज, तो आजकल पेंडेमिक में मेड नहीं आ रही है, तो कोशिश करती हूँ यूट्यूब से देख के कुछ कुछ उनको बनाकर खिला दूँ. यू नो, वो एक अलग ही एक्सपीरियंस है. मुझे तो 15 साल हो गए काम करे हुए, तो अच्छा लगता है जब बच्चा कहता है कि हाँ मम अच्छा बनाया, अगली बार ये और इसको ऐसे और ऐसे कर देना, तो इट फील्स गुड. बस इससे ज्यादा कुछ नहीं. फ्रेंड से बात करने की, फैमिली से, मम्मी हैं, मेरे ब्रदर्स हैं, उनसे बात करने का बहुत शौक है. एक्चुअली मुझे बात करने का नॉर्मली जनरली बहुत शौक है. whenever someone comes to my residence, तो मैं पहले ही वार्न कर देती हूँ कि देखो ऐसा है, मैं बहुत बोलूंगी, और मैं बोलना शुरू करूँ तो मैं चुप नहीं होंगी, इसलिए यू प्लीज यू कैरी ऑन विद जो भी तुम्हें कहना वहना है. एंड मैं सेमिनार्स में भी यही बोलती हूँ कि देखो साहब, मैंने बोलना शुरू कर दिया ना, तो एक टॉपिक आप मुझे 2 घंटे के लिए दोगे, मैं 2 दिन तक बोल सकती हूँ. मैं बड़ी मुश्किल से इसको समेट कर लाई हूँ 2 घंटे में. तो बोलने की बहुत शौकीन हूँ, तो दोस्त दोस्त हैं, ठीक है, बस ऐसे ही चल रहा है, चला रहे हैं. बट वन शुड हैव एटलीस्ट वन हॉबी अपार्ट फ्रॉम प्रोफेशन. दैट्स अ बिग आउटलेट. So, ma'am, lastly, what are your views on this female achiever series that CA Sansar has initiated, featuring dynamic women who have worked very hard to make it to the top? That's a very good initiative. That's what I was telling you. I was talking to Vivek ji, and my impression is that, you know, at times girls your age or the younger bunch, they are like कि we are too strong, we don't need anybody's help. I know we are too strong, we are too strong. And आज की डेट में तो बहुत लोग इस बात को मानने लगे हैं कि ladies are stronger than their male counterparts, and we actually are every which way. Professionally, just physically थोड़ा छोड़ सकते हो, emotionally also, and अभी तो we are getting financially also stronger than those. तो that apart,
व्हाट आई वुड से इज कि थोड़ा सा वहां से कोऑपरेशन मिलता है तो चीजें खुल कर आती हैं मैदान में। मुझे कुछ बात कहनी है, आई वांट टू शेयर इट विद समबडी, तो बजाय इसके कि मैं 1-to-1 बताऊं लोगों को, यू नो, आई हैव सो मेनी एक्सपीरियंसेस इन माय लाइफ। मैं बहुत सारे बच्चों को, लड़कियों को मैं बहुत सारी चीजें कह सकती हूँ एट टाइम्स, यू नो। एक एग्जांपल देती हूँ। देयर वाज अ गर्ल इन माय नेबरहुड, तो शी वाज लाइक कि बहुत कुछ उसने पढ़ाई वढ़ाई कर रखी थी, शादी के बाद काम नहीं कर पा रही थी बच्चों की वजह, मतलब बहुत छोटा बच्चा था उसकी वजह से। तो whenever I meet her, she was like कि अब मैं चली जाऊंगी तो इसका ध्यान कौन रखेगा, और मेड नहीं मिल रही है, थिंग्स लाइक दैट। तो मैं हमेशा उससे कहती थी यार कूद जाओ, एक बार नदी में या जो भी सागर है, ओशन है, जो भी है, उसमें छलांग मार दो, रास्ते अपने आप निकलते हैं। क्योंकि मेरे साथ ये बहुत हुआ है। मुझे बहुत हर चीज का ये लगता था, अरे इसको कौन देखेगा, अरे इसको खाना कौन खिलाएगा, अरे इसके लंच कौन पैक करेगा, शुरू शुरू में। लेकिन होता क्या है कि तुम्हें नहीं पता, यू नेवर नो कि किसी सवाल के कितने जवाब हैं या किसी समस्या के कितने समाधान हैं। वंस यू हैव टू फेस इट, वो रास्ते अपने आप निकलते हैं, यू नो। ये एक मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ऐसे मेरे पास बहुत सारे होंगे, डेफिनेटली होंगे। जब मैं बात करूंगी तो बहुत सारी चीजें बताऊंगी। तो एक प्लेटफॉर्म मिलता है, एक फोरम मिलता है, जिससे हम अपनी बात एक ही बार में 100 लोग, 200 लोग, 400 लोग, 1000 लोग देख रहे हैं, गर्ल्स, तो आई थिंक दे कैन बेनिफिट फ्रॉम इट। एंड सबसे बड़ी बात ये होती है कि व्हेन मेल्स आर आल्सो इन्वॉल्व, तो दे आल्सो कम टू नो कि भाई ये लेडीज क्या क्या सहन कर रही हैं और इन्हें, इनको क्या क्या चीजें और चाहिए। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि लड़कियों ने बहुत तरक्की कर ली, बहुत तरक्की कर ली। लड़कियों को हम लड़कों की तरह से पालते हैं, बड़ा करते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी जब बेटे और बहू में डिस्प्यूट्स होते हैं तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि उस बहू को, जो मेरी बहू है, वो जिसकी बेटी है, उसने उसको बेटे की तरह पाल दिया। लेकिन मैंने अपने बेटे को, उन बेटियों को जो बेटों की तरह से पल रही हैं, उनको झेलना या उनको समझना नहीं सिखाया। देयर इज अ गैप, है ना। उसी की वजह से ये सारे डिस्प्यूट्स हो रहे हैं। दो आई हैव टू एग्री की चीजें बहुत संभल रही हैं। हमारे टाइम में अलग बात थी, धीरे धीरे बहुत सारी चीजें अच्छी हो रही हैं। तो इट विल ऑलवेज बी प्लेजर फॉर द लेडीज अगर लेडीज की समस्याओं में, लेडीज की चीजों में मेल्स भी इन्वॉल्व होते हैं। दैट मेक देम मोर लेडी सेंसिटिव और वुमेन सेंसिटिव। तो ठीक है, इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव, आई रियली अप्रिशिएट। एंड इट हैज टू कैरी ऑन, ये चलते रहना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कुछ नया मिलेगा सबको, बोलने वाले को भी, सुनने वाले को भी, है ना। So, ma'am, we are extremely thankful to you for sparing your valuable time and sharing with us such beautiful insights of your life. I'm sure all our viewers will be extremely motivated from your words of wisdom. Thank you, Neha. Thank you very much, and thank you, CS Ansar, for giving me this opportunity. And I think I am going down the history. I am the first woman to appear on this show, so that is my pleasure. And thank you very much. The pleasure is all ours. Also, a little token of appreciation for CA Vivek Khurana, the founder of CA Sansar, for conceptualizing and organizing this women's special series. And thank you all for being part of our today's episode. We shall be back with another Wonder Woman very soon.